and n naught or n zero exist such that 0 is less or equal to fn is less or equal to c of gn for every n is greater or equal to n naught. ठीक है, यही चीज यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो वी कैन से दैट एफ एन बिलोंगिंग टू ऑर्डर ऑफ जी एन और एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन. दिस इज ऑर्डर ऑफ जी एन. ये बिग ओ है ऑर्डर ऑफ जी एन इफ एंड ओनली फॉर सम पॉजिटिव. यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या है, फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन जीरो एग्जिस्ट such that 0 is less or equal to fn is less or equal to c of gn for all n is greater or equal to n0. all n is greater or equal to n0. So this means where n क्या है, यहाँ पे n is the size of data, means number of input. This means for large amount of data, for large amount of data, for large amount of data, fn will grows no more than a constant factor. Fn will grows no more than a constant factor then gn. This means here the constant factor, what is the constant factor depends on the several factors. Means constant factor depends on the programming languages, concept of programming language, quality of compiler or interpreter, speed of central processing unit or microprocessor, size of the main memory, access time, knowledge of programming and algorithm design itself. So this is the constant factor. Means constant factor depends on the several factors. Your constant multiplier depends on the several factors such as programming languages concept, quality of compiler and interpreter, CPU speed और microprocessor speed, size of main memory की size क्या है उस पर भी depend करेगा, access time क्या है, knowledge of programmer and algorithm design of algorithm itself. So we can say that this is the mathematical definition of big O notation. Means we can say that fn is order of gn if and only if for some positive constant or there exists some positive constant c and n naught such that 0 is less or equal to fn is less or equal to c of gn for all n is greater or equal to n naught. अब यहाँ पे देख लीजिए for all n is greater than n naught, ये ग्राफ क्या है, asymptotically अपर बाउंड दे रहा है, दिस सी ऑफ जी एन, दिस इज एफ एन. तो देखिए 0 इज लेस आर इक्वल टू सी, एफ एन इज लेस आर इक्वल टू सी ऑफ जी एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर एन नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट एंड सी क्या है यहाँ पे, सी इज ए कांस्टेंट मल्टीप्लायर. So let us consider some examples and how we determine the complexity. So here when we write 2n to the power, when suppose this is written, what is the find the complexity of function fn when fn is equal to n to the power 2.9 n cube plus n cube 240 n square plus 2n plus 4 and what is the complexity of 2n cube plus 4n square plus 4n plus 2? What is the complexity of 100n cube plus 3n plus 2 and so on?
तो व्हेन वी राइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन, ये fn की वैल्यू है, व्हेन fn इज इक्वल टू, तो दिस हमें यहाँ पे देखना है कि दिस गिव्स अ एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड, नॉट अ अपर बाउंड। अपर बाउंड में तो n टू द पावर 2.9 हो, इसको n क्यूब भी लिख सकते हैं, n टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, n टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं, और 6 भी ले सकते हैं, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ small omega. When we talk about a big O notation, this gives this always gives a asymptotically tight upper bound. तो the complexity of this is क्या हो जाएगा, इसकी complexity order of n cube. Order of, generally here we take an integer value, तो order of n cube. Similarly, what is the complexity of this? Order of n cube. ठीक है, बिकॉज बी इग्नोर दी कांस्टेंट मल्टीप्लायर, ये क्या होगा, लेस आर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू n क्यूब होगा, तो दिस मींस दिस इज रिटन एज ऑर्डर ऑफ n क्यूब। gn की वैल्यू क्या है, ये c ऑफ n क्यूब। देन ये क्या है, n क्यूब है, तो दिस इज एग्जैक्टली n क्यूब, तो दिस इज रिटन एज ऑर्डर, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो दिस मींस दिस इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब। सिमिलरली 240n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4, इफ दिस इज लेस आर इक्वल टू सपोज 300, एक मैं एजम्पशन बता रहा हूँ, दिस इज नॉट कि एक यही कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लायर 300 ऑफ n स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए, दिस इज फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड n जीरो, सच दैट 0 इज लेस आर इक्वल टू fn इज लेस आर इक्वल टू c ऑफ gn। तो ये fn क्या है, fn है आपका 240n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4, दैट इज लेस आर इक्वल टू 300 n स्क्वायर। तो अब इसकी हम कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, fn इज रिटन एज, यहाँ पे क्या है, fn इज रिटन एज ऑर्डर ऑफ gn, ये है fn इज ऑर्डर ऑफ gn। तो यहाँ पे gn की वैल्यू क्या है, c इज ए कांस्टेंट मल्टीप्लायर, यहाँ c की वैल्यू क्या है 300, gn की वैल्यू क्या है n स्क्वायर, तो दिस मींस fn इज रिटन एज ऑर्डर ऑफ gn, ऑर्डर ऑफ gn मींस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सिमिलरली व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, ये इसकी यदि कॉम्प्लेक्सिटी हमें फाइंड करना है, क्या है, इसकी वैल्यू आएगी लेस आर इक्वल टू, सपोज इसकी वैल्यू आई लेस आर इक्वल टू 105 ऑफ n क्यूब, तो यहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट मल्टीप्लायर 105 एंड दिस इज n क्यूब, दिस मींस वी कैन से दैट दिस इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब। सिमिलरली इसको आपको लिखना है, तो दिस इज आल्सो ऑर्डर ऑफ n क्यूब, दिस इज आल्सो ऑर्डर ऑफ n क्यूब। बट व्हेन वी कैन राइट, सपोज दिस ये लिखा हुआ है आपका कि दिस इज ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 3.2 और ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर प्लस n, तो इसको हम नहीं लिख सकते ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ऑर्डर ऑफ n क्यूब नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये एसिम्प्टोटिकली अपर टाइट अपर बाउंड नहीं है, दिस इज ए लोअर n टू द पावर 3.2 दैट इज ग्रेटर देन n क्यूब, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट राइट दिस इज इक्विवेलेंट। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हम इसको लिख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब, तो दिस इज रॉन्ग, नॉट इक्वल टू। यदि हम इसको लिख रहे हैं कि दिस इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब, दिस इज नॉट, बट यही केस यदि हम इन दोनों को लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ n क्यूब, इसको जो है स्मॉल ओमेगा में या ओमेगा नोटेशन पे लिखा जा सकता है, ओमेगा, बिकॉज ओमेगा नोटेशन गिव्स अ एसिम्प्टोटिकली लोअर बाउंड, टाइट लोअर बाउंड। सिमिलरली यदि हम इसकी बात करें तो इसको हम बिग ओ के केस में लिख सकते हैं n क्यूब, बिकॉज दिस गिव्स अ एसिम्प्टोटिकली अपर बाउंड, नॉट अ टाइट अपर बाउंड। यदि टाइट की बात करेंगे तो हम नहीं लिख सकते ऑर्डर ऑफ n क्यूब टाइट अपर बाउंड की। यदि हम सिंपली अपर बाउंड की बात करेंगे तो वी कैन राइट इट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ c एंड n जीरो, क्योंकि यहाँ पे इस टर्म में ये कहा गया है कि फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड n नॉट exist such that 0 is less or equal to fn is less or equal to c of gn for all n is greater or equal to n0. So here there is a question that how we determine, we can write the complexity generally कि ये constant factor हो सकता है, constant multiplier हो सकता है, and we can write it that is equivalent this. But what is the value of c? How we can determine the value of c and n naught? So we here let us find how we find the value of, so that there is a question, show that 400 n square plus 20 n is equal to order of n square.
अब आपको शो करना है एंड डिटरमिन द वैल्यू सो दैट दिस एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टी एंड एन नॉट, आपको यहाँ पे डिटरमिन करना है। तो अब यहाँ शो क्या करना है कि दिस इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बिग ओ नोटेशन वी नो दैट, तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ बिग ओ नोटेशन, डेफिनेशन हम जान रहे हैं क्या है, फॉर सम कांस्टेंट सी एंड एन जीरो, this condition satisfies 0 is less or equal to fn is less or equal to c of gn. So just put the value of fn here, just put, यहाँ आपको ये भी पता है प्रूव क्या करना है कि n स्क्वायर है, दिस मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ gn, दिस इज द वैल्यू ऑफ fn। तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ fn एंड gn। तो 0 इज लेस और इक्वल टू, fn की वैल्यू क्या है 400 n स्क्वायर प्लस 20n दैट इज लेस और इक्वल टू C ऑफ gn, C और gn की वैल्यू क्या है n स्क्वायर। ओके, तो we divide this by n स्क्वायर, एवरी साइड डिवाइड इट बाय n स्क्वायर। तो हम इसको कह सकते हैं 0 बाई n स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 400 n स्क्वायर प्लस 20n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर दैट इज लेस आर इक्वल टू C ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। This is 0 that is less or equal to ये 400 plus 20 divided by n that is less or equal to C, that is less or equal to C। तो अब देखिए फॉर विच वैल्यू ऑफ n, फॉर विच, अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो ये है C की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं n पे भी डिपेंड कर रही है। तो विच वैल्यू ऑफ C दिस गिव्स अ ग्रेटर। तो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ व्हेन, अब यहां पे हम कह सकते हैं कि व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 20 डिवाइडेड बाय n, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दिस मींस 20 बाई n टेंड्स टू कहां जाएगा, 0 की तरफ टेंड्स करेगा। ठीक है, जैसे ही n की वैल्यू आपकी लार्जर होती जाएगी तो विच वैल्यू ऑफ n दिस इज ग्रेटर। तो दिस मीन्स व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ n, दिस मीन्स दिस इंप्लाइज 20 बाई n इज मैक्सिमम व्हेन n इज इक्वल टू 1। ठीक है, 20 बाई यहां में देखना है कब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि c इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो जैसे ही n की वैल्यू लार्जर होगी, लार्ज लेंगे तो ये क्या करेगा 20 बाई n इनफिनिटी 0 की तरफ मूव करेगा। व्हेन n टेंड्स टू इनफिनिटी 20 बाई n मूव्स टू टेंड्स टू 0। तो 20 बाई n इज मैक्सिमम व्हेन n इज इक्वल टू 1। दिस मींस पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n हियर। तो 0 इज लेस और इक्वल टू 400 plus 20 that is less or equal to C। This means what is the value of C? C is the value of C is greater or equal to 420। तो दिस मीन्स C की वैल्यू वहां से हम लोग फाइंड कर लिए कि C की वैल्यू क्या होगी 420 होगी या इससे ग्रेटर 421 ले सकते हैं, 422 मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो दिस इज 420 हो गई। तो इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ C। एंड अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ n naught। What is the value of n naught? To put the value of C in the above equation, so the above equation is what? 0 is less or equal to 400 plus 20 divided by n naught, यहाँ पे किस n naught, and this is less or equal to C। यहाँ से देखिए ये इक्वेशन, just see here, put the value of C in this equation, 0 is less or equal to 400 plus 20 divided by n naught। तो यहाँ पे पहले भी हालांकि हम n naught फाइंड कर चुके हैं कि n naught मीन्स किसके लिए, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n naught द कंडीशन इज सेटिस्फाई 0 इज लेस और इक्वल टू fn इज लेस और इक्वल टू C ऑफ gn। तो इससे क्लियर है कि n naught की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी।
So how we determine this? 0 is less or equal to 400 plus 20 divided by n naught, that is less or equal to c. अब यहाँ पे 400 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दिस मीन्स इससे 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस मीन्स दिस, अब ये c की वैल्यू हमें पता है क्या है, 420 है, तो 0 इज लेस और इक्वल टू 400 प्लस 20 बाई n naught, दैट इज लेस और इक्वल टू 420. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस 400, यहाँ पे क्या होगा? 0 minus 400 is less or equal to 400 plus 20 by n naught minus 400 is less or equal to 420 minus 400. तो दिस इज क्या हो जाएगा? माइनस 400 इज लेस और इक्वल टू, ये क्या है? कैंसिल हो जाएगा, तो 20 बाई n naught इज लेस और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 20. दिस मीन्स 20 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? माइनस 20 इज लेस और इक्वल टू 1 बाई n naught इज लेस और इक्वल टू 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस मीन्स माइनस 20 n naught इज लेस और इक्वल टू 1 इज लेस और इक्वल टू n naught. n naught क्या आ गया? यहाँ से देखिए, व्हाट इज n naught? दिस मीन्स वी कैन से दैट n naught इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. n naught की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं या 1 से ग्रेटर ले सकते हैं, greater or equal to 1. So in this way we can find the value of, so this means we can write it like 0 is less or equal to 400 n square plus 20 n, that is less or equal to 420 n square for all n is greater than n naught which is equal to 1. ठीक है, ये इसको लिख दिया. तो यहाँ पे ये देखिए, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई? 420. तो किसी भी कांस्टेंट फॉर सम कांस्टेंट वैल्यू c एंड n naught की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? a. तो दिस सेटिस्फाई. c की वैल्यू 420 या 420 से अबव कुछ भी ले सकते हैं, n की वैल्यू 1 या 1 से अबव कुछ भी ले सकते हैं, बट ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, इफ फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0. ठीक है, ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n0. तो यहाँ पे n0 की वैल्यू क्या आई? 1 आई, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू क्या आई? 400. तो इन दिस वे we determine the constant multiplier and the value of n naught. Similarly, the next example is so that n is equal to order of n log n. So that n is equal to order of n log n. तो सिंपली है, आपको fn दिया हुआ है, fn की वैल्यू क्या है? दिस इज fn, दिस इज gn भी दिया हुआ है. आप डेफिनेशन ले लीजिए. डेफिनेशन क्या है? 0 इज लेस आर इक्वल टू fn इज लेस आर इक्वल टू c ऑफ gn फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बिग O नोटेशन. यहाँ पे क्या आएगा? सिंपली देखिए, 0 इज लेस आर इक्वल टू fn क्या है? n इज लेस आर इक्वल टू c ऑफ n log n. अब इसको क्या करिए, दोनों साइड सारे साइड में जो है इन ऑल साइडेड वी डिवाइड बाई n log n. तो ये तो 0 हो जाएगा, ये n डिवाइडेड बाई n log n, दिस इज लेस आर इक्वल टू c हो जाएगा. n एंड n कैंसिल हो जाएगा. दिस मीन्स 0 इज लेस आर इक्वल टू 1 बाई log ऑफ n इज लेस आर इक्वल टू c. तो व्हेन सिंस 1 बाई log n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या होगा? 1 बाई log n टेंड्स टू 0. दिस मीन्स 1 बाई log n is maximum. This implies 1 by log of n is maximum. जनरली यहाँ बेस जो है 2 है, मैक्सिमम when n is equal to 2. n is equal to 2 होगा तो क्या होगा? log of n means log of 2 base 2, वैल्यू हो जाएगी 1. तो दिस मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी? when n is equal to 2. तो दिस मीन्स c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू आएगी 0 इज लेस आर इक्वल टू 1 बाई 1, दैट इज लेस आर इक्वल टू c. तो c की वैल्यू क्या हो गई? c इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1. दिस मीन्स वी कैन चूज c इज इक्वल टू 1 और एनी ग्रेटर वैल्यू देन 1. एंड यहाँ पे देखिए सेकंड क्या आया? फॉर डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ n naught, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन,
तो 0 when we put the value of, अब यहाँ पे हमने c की वैल्यू डिटरमिन कर लिया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? जनरली द वैल्यू ऑफ c क्या है? c इज इक्वल टू आ गया आपका, c इज इक्वल टू 1. when we put the value of c here, c 0 is less or equal to 1 by log of n naught is less or equal to 1. so this means इसको करेंगे तो क्या होगा? 0 is less or equal to 1 is less or equal to 1 by log of n naught. This is 0 is less than or equal to 1 by log n naught is less than, तो this हम लिख सकते हैं इसको, this is log of n 0, log of n 0. तो log of n 0 is 1 when n naught is equal to 2. ठीक है, log of n ये कब 1 होगा? log of this value is greater or equal to, तो log of n 0 ग्रेटर आर इक्वल टू, क्योंकि जैसे इसकी वैल्यू 2 या 3 होगी लॉग ऑफ n 0 की, तो वैल्यू और ग्रेटर आएगी. तो लॉग ऑफ n इज इक्वल टू कब मिनिमम आएगा? लॉग ऑफ n 0 इज इक्वल टू 1 व्हेन n नॉट इज इक्वल टू 2. व्हेन n नॉट इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 आ जाएगी. यदि n नॉट की वैल्यू ज्यादा लेंगे, मान लीजिए 4 ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी. तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 2. तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या लें? तो log of n 0 when we take n 0, so this means for, because we here know for all n is greater or equal to n naught, तो n naught की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 लेंगे. यदि 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. तो दिस इज 1 is not less or equal to 0. ठीक है, ये लेस हो जाएगा तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा. तो वी टेक द वैल्यू ऑफ n 0 इज इक्वल टू, इन दिस वे वी कैन से दैट 0 इज लेस और इक्वल टू fn मींस n इज लेस और इक्वल टू, c की वैल्यू क्या ही है? 1. तो n log n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n 0 एंड c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है, तो इन दिस वे वी डिटरमिन the value of this. The limitation of big O notations that many algorithms are too hard to analyze mathematically, and this is big O notation not gives sufficient information to calculate the behavior of algorithm in average case. Generally, we use big O notation to represent the complexity of an algorithm in worst situation when the value of n is increases. But when we take the medium value of n, means that this not provides the complexity in base situation, and generally big O notation ignore the constant multiplier. So this is all over about big O notation. If there is any doubt, then please ask, and in the next class we discuss some other notation.